کہ کیا ہے اس کے اندر جو یہ مجھ سے دعویٰ کر رہا ہے. لیکن جب میدان میں آئے, دنگل میں ہوا, دنگل کے میدان میں آئے, جیسے ہی ہاتھ ملایا تو اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے اس شخص نے دھیرے سے کہا کہ جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں, میں ایک آل رسول ہوں, سید زادہ ہوں, میرا کنبہ, میرے بال بچے فلاں جگہ پر بے سر و سامانی کی وجہ سے بھوک پیاس سے بلک رہے ہیں, ان کے پاس, عورتوں کے پاس پورے پہننے کے لیے لباس نہیں ہے, لہذا میں نے سنا تھا کہ تم سیدوں کی بہت عزت کرتے ہو, آل رسول کی بہت عزت کرتے ہو, لہذا اے جنید آج تم مجھ کو جتا دو, آج مجھ کو جتا دو گے تو کل قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت سے تمہاری سفارش کروں گا. سنا ہے نا آپ نے, واقعہ بتایا ہوگا, سفارش کروں گا. تو نتیجہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کشتی کے داؤں پیج میں ایسا کچھ کھیلا کہ اس کو اپنے سینے پہ بٹھا لیا. حالانکہ بہت سوچا کتنی بڑی عزت چلی جائے گی, یہ ہو جائے گا, ہو جائے گا, لیکن ایمان نے کہا ارے عزت وہ تو عزت من تشاء و تذل من تشاء, عزت و ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اے جنید آج کام کر لو, ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ مصطفیٰ کی آل کو اپنے سینے میں بٹھا لو. نتیجہ یہ ہوا جب آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی حضرت جنید نے اپنے سینے پہ بٹھایا, کشتی وہ جیت گیا, اس کو تو لوگوں نے سر آنکھوں میں بٹھانا شروع کر دیا, انعامات اکرامات دینے لگے, اور ان کو اتنے بڑے پہلوان کو سب نے نظر انداز کیا, لان تان کرتے ہوئے. یہ اسی دن کے لیے کھا کھا کے موٹا ہوا تھا, یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا. یہ پسماندہ ہو کر, پریشان ہو کر دھیرے دھیرے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوگا. رات آئس ہو گئے, رات آئس ہو گئے, کتنا بڑا مرتبہ چلا گیا. اللہ سمجھ سوئے تھے, قسمت جاگ اٹھی, آنکھ لگی تھی, خوابیدہ حالت میں آئے تھے, لیکن قسمت جو خوابیدہ تھی وہ جاگ اٹھی تھی. دیکھا کیا کہ گنبد خضرا کی طرف سے قافلہ آ رہا ہے. جب قریب آئے تو دیکھا کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت خود تشریف لائے, تو کہا جنید اٹھو, کل قیامت کا انتظار نہ کرو, جو میری آل کے ساتھ دنیا میں کچھ کرتا ہے اس کو قیامت کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے, اس کو دنیا ہی میں میں عطا کر دیتا ہوں. جاؤ آج سے تم سید الطائفہ ہو. اللہ سمجھ, آنکھ کھلی, بڑے خوش تھے, خوشبو بھی آ رہی تھی اور اس کا لطف بھی پورا مل رہا تھا. اللہ کے رسول کو جو خواب میں دیکھتا ہے, یاد رکھیے فرمان رسول ہے کہ جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ شیطان میری شکل میں آ ہی نہیں سکتا. دوسروں کی شکل تو بنا لے گا لیکن میری شکل میں آ نہیں سکتا. یعنی جو خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھے تو یقین جانیے کہ اس نے رسول کو دیکھا ہے. اللہ کے رسول نے انعام دیا, صبح آنکھ کھلی, اپنے کو بڑی فرحت محسوس کر رہے تھے. دروازے پہ باہر آئے, دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ پوری اولیاء اللہ کی لائن لگی ہوئی ہے, اور سب کہہ رہے ہیں اے جنید تمہیں سید الطائفہ کا لقب مصطفیٰ سے جو ملا مبارک ہو. تو خلق کی, مخلوق کی خدمت سے تو ملا نا, اپنا وقار, اپنا سب کچھ چھوڑ کے. کتنے واقعات ایسے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ, عادت تھی آپ کی کہ کبھی بھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ کئی دن گزر گئے لیکن ڈھونڈنے تلاش کرنے کے بعد بھی کوئی مہمان نہ ملا, لیکن کھانا نہیں کھایا آپ نے. اسی تلاش و طلب کے زمانے میں ایک بہت بوڑھا غریب, سن سفید, داڑھی بھی سفید, بھویں بھی سفید, جھکی ہوئی کمر, وہ مل گیا. اس کو پکڑ لایا, کہا چلو میرے گھر میں کھانا کھانا. کھانا لگایا, کھانا کھانے جب دسترخوان تک گیا تو اس نے کہا شروع کریں. کیسے شروع کریں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا نام لو, شروع کرو. کیونکہ اللہ سے بہت محبت کرتے تھے, اللہ کا نام لے لیتا تھا تو آپ گریوڑ بکریوں کو دے دیتے تھے, کہیں کچھ کر دیتے تھے, نام پہ نام دیتے تھے اللہ کے نام. اس نے کہا کیونکہ وہ یہ سورت کو آتش پرست تھا, آپ کو پوجا کرتا تھا, اس لیے وہ اللہ کیا جانے. تو اس نے یہ کہہ دیا میں اللہ, یہ اللہ کیا چیز ہے. جب یہ سنا تو آپ کو جلال آ گیا, آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے کہا تو اللہ کو نہیں جانتا, چل اٹھ میرے خان سے نکل. اس کو عزت کر کے باہر کیا. ابھی باہر ہی کرنا تھا, اللہ کے کنبے کا تھا نا, بولو عیال اللہ میں تھا کہ نہیں تھا. اللہ نے فرشتہ بھیجا اور کہا ہے خلیل اللہ تم نے آج میرے بندے کو
अपने दस्तरखान से उठा दिया। अरे मुझको देखो कि मैं इसको 200 बरस से जो है इसको खाना पीना सब दे रहा हूं, जबकि ये मुझको पहचानता भी नहीं है, मैं इसको खाना पीना दे रहा हूं, मेरी मखलूक को तुमने ठुकरा दिया। अल्लाह समद, ये अल्लाह का जलाल सुनना था कि आप रोने लगे। फिर अल्लाह से माफी मांगी, अल्लाह उससे गलती हो गई, समझिए आप, दरअंदाजी कीजिए। क्या कहने का मकसद ये है, अल मखलूक व यादुल्लाह, मखलूक अल्लाह की कुनुबा है, कुनुबे में जो सबकी मदद लाजमी है कि नहीं है। अब ये अलग बात है कि हमने पैदा हुए जहां वहां उस मजहब को इख्तियार कर लिया, लेकिन अयाद से तो नहीं हटे ना। तो अल्लाह ने किसी भी मखलूक की मदद करने को मना नहीं फरमाया, बल्कि इस्लाम का नजरिया तो यही है कि पड़ोसी हो तो उसका अपने से ज्यादा ख्याल रखो। है एक बुजुर्ग थे, उनके बगल में एक यहूदी रहता था, रात में अंधेरे की वजह से, गुर्बत की वजह से उसके यहाँ चिराग न जल पाता था। उसके बच्चे रोज जो है अंधेरे की वजह से रोया करते थे। आपने 2-3 दिन सुना, उसके बाद आपने क्या किया, जैसे ही रात आती थी तो अपने घर में अंधेरा कर लेते थे, वो चिराग उसको दे दिया करते थे। इस नजरिए को देख के वो मुसलमान हो गए। एक मोहब्बत का, उखुव्वत का ये तकादा है कि मेल मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तिफाक हर मखलूक में घुल मिल के रहना चाहिए। अलग बात है कि कुछ हालात ऐसे कर दिए जाते हैं कि इससे इसको लड़ा दिया, उसको उससे लड़ा दिया, लेकिन मखलूक मखलूक है। जो अल्लाह का फरमान है वो अपनी जगह पर, जो इस्लाम का नजरिया वो अपनी जगह पर। इस्लाम ने इंसानियत को तरजीह दी है। तो आज हमारा नजरिया देख लीजिए, हम इसको देखते हैं, उसको देखते हैं, अरे यार जाने दो, बिरादरान वतन की बात तो जाने दो, अपने आप में एक दूसरे को टांग खींचने में लगे नहीं लगे हैं। ये नजरिया अल्लाह को पसंद है? बोलो भाई, जोर से बोलो। नहीं पसंद है ना, फिर भी कर रहे हैं। मोहतरम, ये सब खत्म करना पड़ेगा। यही वजह है कि आज ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, ऐसे नजरियात पैदा हो रहे हैं, ऐसे मामलात पैदा हो रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि एक नहीं, अपना ही पैदा ही किया हुआ मर्ज आज इतना बढ़ गया है कि जिसका इलाज नहीं। फारसी का मकूला है, खुद करदा इलाज नहीं, अपने किए हुए का कोई इलाज नहीं होता। जो खुद आदमी कर ले उसका इलाज नहीं होता। तो अब मौजूद हालात ऐसे आ गए कि अब आपको, जो बहुत मस्ती से हर काम कर लिया करते थे, हर काम के लिए आपको पाबंद किया जाएगा, किया जा रहा है। अरे पाबंद जाने दीजिए, अब तो आपको अपनी शनाख्त बाप दादा से चली आ रही हो तब भी पेश करना है कि नहीं करना? बोलिए, है भागे भागे फिर रहे होंगे अभी आप। क्यों? उखुव्वत, मोहब्बत, भाईचारा खत्म कर दिया गया। इसलिए कोई आपका साथ देने वाला नहीं, आप अपना नामाए अमल लेके खुद फिर रहे हैं ना। क़यामत का मंजर जब देखोगे, अभी दुनिया में देख लो, एक को पकड़ ले, वो कह रहा है मैं अपना लिए हूँ भाई, मैं अपना लिए हूँ, तुम अपना लिए हो, है ना भाई? हो रहा कि नहीं हो रहा? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जब हमने अपनी हालत के बदलने के लिए कुछ खुद खुदा ख्याल नहीं किया तो अल्लाह ने हालात ऐसा पैदा कर दिए हैं कि अब अपने हाल को सुधारने के लिए हम अपना नामाए अमल लिए फिर रहे हैं। अफसोस की बात है, बोलो, अच्छा लग रहा है? बहुत समझाने के बावजूद समझ में नहीं आता था, आज आपको समझ में आ रहा है कि कयामत में जब यहाँ पर कोई पुरसान हाल नहीं है, किसी को मिल रहा होगा तो ये समझ के चले कि वो ये दुनिया है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा अभी भी। अगर आप अभी ऐसे हालात में अपने भाइयों का सपोर्ट, अपने बिरादरान वतन का सपोर्ट, अल्लाह के कुनबे का सपोर्ट करके एक दूसरे की मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह ये मुसीबत भी टल जाएगी। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। चलेगी नहीं चलेगी? ये नजरिया इस्लाम है भाई, मदद करो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज अब परेशान है ना, काहे से? SIR से। SIR है, समझ में आ रहा है नहीं? अपना अपना नाम अमाल लिए फिर रहे हो कि नहीं? ढूंढवा रहे हो कि हमारा नाम अमाल कहाँ दिखाओ यार, है ना? कर रहे हो ना? अब ढूंढने वाला एक है और चाहने वाले अनेक हैं, अनेक है ना भाई? देर हो रही, सवेर हो रही है और वक्त महदूद है। कयामत में तो आपको बहुत टाइम मिलेगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, लेकिन यहाँ पर बूंद भर का दिन है कि नहीं है? वक्त कितना है? थोड़ा सा। अब हम परेशान हैं क्योंकि शुरू में कहा अभी तो टाइम है, अभी तो वक्त है, अभी तो ये सोच के आधा वक्त निकाल दी, अब आधा वक्त रह गया तो अब भाग मची है कि नहीं मची है? अब अल खल्क़ व अयालुल्लाह के तहत अल्लाह की मखलूक, अल्लाह का कुनबा है,
उस कुनबे में सभी तरीके के लोग हैं, सबकी मदद कीजिए। जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है वो भी लग जाए। खाली बीएलओ को ना समझे कि बीएलओ तो आपके पास आएगा, कितना काम करेगा, लेकिन आप भी लगिए। अगर अल्लाह ने आपको इल्म दिया है और फुर्सत है, नहीं भी फुर्सत हो, फुर्सत निकालिए। अगर नहीं निकालेंगे अपने ही काम करा दीजिए, अब अपने ही करा लीजिए। वरना जिस गद्दी पे बैठे हैं, जिस सीट पे बैठे हैं, जिस ओहदे पे बैठे हैं, अगर आपकी शरीयत नहीं है तो बोलो भाई खत्म। इतना ही नहीं, घर, जमीन, जायदाद, बैंक बैलेंस सब क्लोज और आप बाहर है। तो अगर एक मेरा बन गया है और भाई का किसी के नहीं बनाया, मैं देख रहा हूँ कि ये परेशान फिर रहा है, तो मैं ये सोचूं मेरा तो बन गया मेरे भाई, है ना, है ठीक है। मैं तो वोट डाल रहा हूँ मेरे भाई, 100 वोट में 50 रह गए, आपकी औकात रह गई? बोलो भाई, औकात रह गई? समझने की कोशिश करिए। लिहाजा किसी के ना रहने पाए। इस सिलसिले में मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपके यहाँ जो बीएड हो या कोई तहरीक काम कर रही हो, इस काम में आप भी अपनी मदद दीजिए। पढ़ा लिखा नौजवान लग जाए। एक आदमी अगर पूरी लिस्ट छाटेगा वक्त लगेगा, और उसमें 4 आदमी अगर उस लिस्ट को देखने शुरू कर देंगे, बोलिए वक्त बचेगा और काम पूरा होगा कि नहीं होगा। लिहाजा ये गुजारिश है पूरे मुल्क में, जहां जहां, पूरे यूपी में जहां जहां ये हो रहा है, सब लोग लग के इस काम को कर रहे हैं। खाली हमारे ऊपर ये गाज नहीं गिर रही, सबके ऊपर गिरेगी, है ना। तो ये तो आपका खुलूस होगा, कर दीजिए। बकिया कुछ तहरीकें भी काम कर रही हैं, इंशाल्लाह हमारी ईद मिलादुन नबी कमेटी भी इंशाल्लाह इसके लिए कोशिश करेगी कि कुछ नौजवानों को लगाए। अगर उनका वक्त जाया हो रहा तो उनकी मदद भी करेंगे, मदद भी करेंगे कि उनके वक्त जाया न होने पाए, वक्त उनको जो दे रहे हैं उसका उनको जाया न होने पाए। वो ये ना समझे कि मैं आज जो काम कर रहा हूँ कुछ नहीं, इशारा कर रहा हूँ। लेकिन आप जैसे मुखलिस मुखैर हजरात से गुजारिश करूंगा, जिसको अल्लाह ने ताकत दी है कि वो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो भी लग जाए। ज्यादा से ज्यादा 2-4-6 दिन का काम आपका जाया होगा, लेकिन अगर आप अपनी मदद कर दी तो अभी आपने वाकया सुने हैं कि अल्लाह को बंदों की मदद करना अपने अहकाम में आपसे ज्यादा पसंद है। लिहाजा यही गुजारिश है, लापरवाही न कीजिए। जो अभी सो रहे हो उनको जगाने की भी कोशिश की, अपना काम करने के लिए उठो, वो भी उठे, आप भी उठे, वो भी करें, आप भी करें। इंशाल्लाह ये जो वक्त थोड़ा सा 12-13 दिन का बाकी रह गया है, आप ये ना सोचिए कि बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा बिल्कुल। 4 दिसंबर तक का वक्त है, इसमें आप अपने काम को बखूबी अंजाम दीजिए और अपने साथियों, अपने महल्ले पड़ोस वालों का भी खूब मदद करके इसको जल्द से जल्द तकमील तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। वमा अलैना बला। और दूसरा ऐलान सुन लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रात 27 नवंबर बरोज़ जुमरात यानी आने वाली है, बाद हमारी शब मकाम गुलाबाग मस्जिद ग्राउंड खाईपार बांदा में मसल की आला हज़रत और अज़मत वालिदैन का